Hello friends, my name is Ashwini and welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to understand how to start writing a basic Python programming. Okay. Now this video is a part of our 30 days Python learning, students. So in case if you have not seen our previous videos, we request you to please see that, because in that we have properly told you how to install the Python, how to open the IDLE. We have taken the version of Python that is 3.8.10. We have also performed some, how to print a value and all. So if you are completely new to Python, it's a request that you please see those previous videos. The link for the video we have already put in the description. Okay, thank you. So now let us assume that we have to start writing our Python programming. Okay. So the first one, let's say we want to do a simple addition of two numbers or subtraction of two numbers. Very simple program से चालू करेंगे. हमें दो numbers को add करना है. We want to add two numbers. Okay. So let's say I have a variable x. Okay. I have a variable y. Assume. Okay. And what I want to do, I just want to do the sum of x plus y. मतलब मेरे पास एक variable है, दूसरा variable है. मुझे उन दोनों का एडिशन चाहिए ना. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, पाइथन इज सो सिंपल. नो हेडर फाइल्स, नथिंग. डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो. एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है. x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है. आई डिक्लेयर्ड अनदर वेरिएबल कॉल्ड एज सम. व्हाट इज द सम डूइंग? इट इज ओनली डूइंग x प्लस y. तो क्या किया? वॉट एवर वॉज द वैल्यू ऑफ x प्लस y, इट हैज केप्ट इन अ वेरिएबल विच इज कॉल्ड एज सम. So now let's say you just have to print it. Okay, last time हमने देखा था print कैसे करना है. Well, use print. Okay, print is equal to, तो क्या वैल्यू है, कहाँ से आएगा, कौन से वेरिएबल से आएगा, ये sum. That is why I've written it over here. Okay, that's it. We got the value 12, right? This is so simple. Okay, you declare the variable and you can do that. Now let's say जैसे हमने एडिशन किया, हम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हैं. ओके, यू कैन डिक्लेयर एनी वेरिएबल. लेट्स से आई डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल कॉल्ड एज सब्सट्रैक्शन. ओके, SUB. नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स कि आपको यही वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है. नॉट एट ऑल नेसेसरी. एडिशन करना है तो सम ही यूज करना है, नहीं. बट दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग अ प्रोग्रामिंग. Later if somebody is looking at your program, okay, he will understand. अगर sum use किया मतलब addition ही किया होगा. अगर multiplication MUL ऐसा कुछ लिखा है मतलब multiplication ही किया रहेगा. So what variables we declare if they are in parallel to the operation that we are performing, तो it is easy, for somebody to understand our code. इसलिए जब हम starting से learn कर रहे हैं ना, पहले से हम learn कर रहे हैं programming करना, so that time only we'll learn these techniques. Okay, so let's say मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया SUB, that is subtraction. ये subtraction क्या कर रहा है? let's say y minus x कर रहा है. y का वैल्यू x से माइनस करेगा. so now I want to see what is the value, so I'll say print sub is equal to, क्या करना है मुझे? sub को कॉल करना है. अरे हाँ, okay, I just have to call it and that's it. Okay, it is done. Subtraction is done. Very simple. I've got the value as 2, that is 7 minus 5. Students, this is very easy. Already the values were defined. The values are defined over here. Variables are defined. Now what if I say the values are not predefined? Default values नहीं है. आपको user से value लेना है. You have to take the value from the user. Very simple. Don't worry. You just have to use something else. Okay. So for that, let's say अगर हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि Python है ना, प्रोग्राम, ओके, टू गेट वैल्यू फ्रॉम यूज़र. ये क्या किया मैंने? आई हैव रिटर्न अ कमेंट. अ कमेंट इज़ यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टेल दैट दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग. आप जब भी कमेंट लिखना चाहते हैं, आप हैश आपको डालना है, दैट इज शिफ्ट एंड 3. So your compiler understand it is just a comment. It will ignore it. उसको execute नहीं करना है. Okay? बस एक comment है वो. Okay? Next, let's say अभी हमें क्या करना है? User से data लेना है. Again, let us say हमें दो what we want to do? Addition of two numbers. So let's say x is equal to, whenever you want to take the data from user, तो हम क्या लिखेंगे? Input. क्या लिखेंगे? इनपुट यूज करेंगे. ओके, वॉट एवर यू राइट इन द कोड्स वो डिस्प्ले होगा, यूजर वो पढ़ेगा और आपको वैल्यू देगा.
तो आप क्या चाहते हो यूजर क्या पढ़े, तो लेट्स से यू वांट लेट एंटर द फर्स्ट नंबर, यू आर सेइंग एंटर द फर्स्ट नंबर, ओके, यूजर विल रीड इट, ओके, तो आई एंटर द फर्स्ट नंबर, तो लेट्स से आपने फर्स्ट नंबर एंटर किया 12. Now you want to do addition of two numbers, means obviously you will need one more. Okay, so for that again you are asking from the user, okay, enter the second number, whatever is the second number you enter that number. Okay, तो user बोलता है enter the second number, so let's say आपका second number is 13. Okay, so what you have done here students, you have taken the data from the user, not like you have already defined it or it is predefined. In short, now you have already got x and y. So what do you think now? You can directly use a variable and declare it. Let's try. So means let's say again I use a variable called as sum. Sum is nothing but x plus y. Okay, मैं क्या कर रही हूँ? This is my x, this is my y. I have already got that data from the user. I just want to do x plus y. Now whatever the value is stored in sum. Okay, and let's say I print it. Let's say I print it. Sum is equal to, और कौन सा वेरिएबल से वैल्यू लेना है, sum. It gave me a weird answer of 12 space 13. Please understand students, it has given me such an answer because whenever you are taking data from the user, okay, you need to mention something called as a data type of that particular variable. Okay, when earlier when it was predefined, your compiler understood it, but now when user is giving the data, you have to intentionally, extensively go and define the data type. Now what are data types? There are various types of data types like integer hai, float hai, decimal hai. We will be explaining you data types in the coming videos. Okay, so let's say this is like sum is equal to, let's say my data type is x, y, because 12 is an integer value. Float होता तो 12.56, 12.0 ऐसा कुछ होता, ठीक है, प्लस मेरा दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर है, ओके, इंटीजर ऑफ y, ठीक है. सो अभी सम में क्या आया, इट हैज कम द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, सो नाउ लेट अस सी, आई एम जस्ट गोना राइट sum over here. So sum is equal to, I am writing sum. See, I got the value 25. This time I got the value 25 correctly. Understanding? Now students, अगर float होता कोई difference नहीं. Let's say मेरा value, I'll declare a variable sum. I'll use a data type called as float. Okay, plus float. Now you will say 12 and 13 तो integers है, float है तो आंसर में एरर आना चाहिए था. If you are declaring them as a float, आप बता रहे हो कि x and y float है, it will assume it as 12.0 and 13.0 students. Okay, let's see. You just need to print the value. Let's say sum. It is just giving you the sum. Okay, see, उसने value print किया 25.0. What it printed is 25.0. Okay, so this is how, this is how we can perform our addition, subtraction in it. Okay, now that we have got a little bit of hands on, कैसे लिखना है program, print कैसे करना है, input कैसे करना है, let us perform one more problem. Okay, one very very famous problem, of very basic and famous problem, okay, is to swap two numbers. आप if you are giving a viva or any exam, ये बहुत ही common example आपको पूछा जाएगा कि there are two numbers and you just need to swap those two numbers. Okay, so let us quickly students, I hope this is clear, so we'll move further. Let's say I want to write a Python program to swap two numbers. Bas. Again, if you see, I've written it as a comment, so the compiler knows it doesn't have to do anything, just ignore it and go forward. Okay, swap two numbers करना है, मतलब पहले क्या होना चाहिए, आपके पास दो numbers होने चाहिए. Okay, so let's say I have x is equal to 5, y is equal to 7. मेरे पास दो numbers है 5 and 7. मुझे क्या करना है, I want to interchange. I want an answer in such a way कि x 7 हो जाए और y 5 हो जाए. Swap कर दिया मैंने value.
तो हाउ टू डू दिस, थोड़ा सोचो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक. थिंक, you have a variable x, it has a value. You have a variable y, it has a value. आप चाहते हो x का वैल्यू y में जाए, y का वैल्यू x में जाए, तो क्या करेंगे? One very simple way to do that is by using a temporary variable. Very common. Okay, that you will use a temporary variable. Now what is this temporary variable? I'll give you an example, a very simple example. As you know, children, we used to do this. Suppose आपके पास एक ग्लास है, एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में दूध है. ओके, अब मुझे स्वैप करना है, जिस ग्लास में पानी है उसमें दूध डालना है, जिसमें दूध है उसमें पानी डालना है. तो हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा ग्लास लेंगे, खाली ग्लास लेंगे. जिसमें पानी था वो ग्लास मैं खाली करूँगी, वो खाली वाले ग्लास में. दूध वाला ग्लास उठा के पानी वाले ग्लास में डाल दो. ओके, और वो जो ग्लास खाली था जिसमें अभी पानी डाल के रखा है आपने, उसको उठाओ और दूध वाले ग्लास में डाल दो. ख़त्म. तो क्या हो गया, दूध वाले ग्लास में पानी चला गया, पानी वाले ग्लास में दूध चला गया. वॉट यू डिड स्टूडेंट्स, वॉट यू डिड, you took a help of another glass, a empty variable over there. वही आपको करना है इधर. ओके, उसको कहा जाता है temp. In programming language, when we are taking a variable for temporary only for doing a small operation, तो उसको हम बोलते हैं temp. तो हम क्या बोलेंगे, वो जो हमारा खाली ग्लास था ना, that is temp. Whatever was the value of x, temp में डाल दो. ओके, temporary में डाल दो. ठीक है. whatever was in y, ओके, वो x में डाल दो. मतलब जो भी हमारा वैल्यू है, y हो गया x. ओके, x तो चला गया था temp में. ओके, अभी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू temp कर देंगे. y को क्या करेंगे, temp कर देंगे. सिंपल. ओके, तो हमने ये कर दिया. अभी देखते हैं, हमने सिंपल तो बोल दिया, हुआ कि नहीं. तो हम देखेंगे what is the value of x now. To see how what is the value of x, same thing, you will say print I want the value of x is equal to, hence I've put it in double inverted quotes and I'm saying comma x. x मतलब जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे सारा स्वैपिंग किया है ना, फाइनली x का वैल्यू कितना आया. देखो x का वैल्यू आया 7. That is what I wanted. Earlier my x was 5. I wanted it to be the value of y. ठीक है, देखते हैं y के साथ क्या हुआ है. So let us do that now. y is equal to, ओके, y इज इक्वल टू लिया मैंने y, तो y इज इक्वल टू हो गया 5. सो यू नो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस बाय यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल. ओके, टेम्पररी वेरिएबल के इससे आप इजीली कर सकते. समटाइम ना स्टूडेंट्स, ओनली टू सी हाउ गुड यू आर इन प्रोग्रामिंग, समटाइम्स टू हैव सम ट्रिकी क्वेश्चंस इन योर वाइवा, आपके एग्जामिनर आपको पूछेंगे कि विदाउट यूजिंग अ टेम्प वेरिएबल स्वैप द टू नंबर्स एंड शो अस. without using, swap the two numbers. तो आपको क्या करना, so वो भी ट्राई करते हैं. Let's say now we are going to write a Python program. Okay, we going to write a Python program, okay, to swap two numbers. Okay, to swap two numbers without using temp. without using temp हमें करना है. तो क्या करेंगे, फिर से करते हैं. लेट्स से x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7. बहुत सिंपल है. वी यूज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल ओवर हियर. ओके, जो y का लोकेशन था वो x को दे दो, x का लोकेशन था वो y को दे दो. वेरी सिंपल एंड यू मे बी शॉक्ड ऑल्सो सीइंग दिस. तो अभी देखते हैं, x कॉमा y दैट इज इक्वल टू y कॉमा x. खत्म. x कॉमा y इज इक्वल टू y कॉमा x कर देते हैं. ओके, अब देखते हैं क्या होता है. नाउ लेट्स से प्रिंट, हाँ, लेट्स से प्रिंट x इज इक्वल टू, देखते हैं x का वैल्यू क्या आया. पहले x का वैल्यू था 5, देखो अभी x का वैल्यू आ गया है 7. लोकेशन चेंज कर दिया हमने. ओके, और नेक्स्ट क्या किया आपने, प्रिंट y इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5. Very simple. Without using temp variable also, we can do this. Okay, simple way that you can just change the number. Sometimes students they go even one step higher. अभी I think आप बहुत comfortable हो रहे हो and I think you are starting learning.
और 2-3 मेथड्स है स्वैप करने के, क्विकली वो भी देख लेते हैं, यू नो. सो लेट्स सी, अगर मुझे टेम्पररी वेरिएबल भी यूज़ नहीं करना है, ये इंस्टेंसेस जो मैंने चेंज किए हैं ये भी नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है? देन व्हाट एम आई सपोज टू डू? वो बोलेंगे आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करो और स्वैपिंग करके दो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिविजन करो, कुछ भी करो. टेम्प वेरिएबल यूज़ नहीं करोगे, ये 2 वेरिएबल यूज़ करके ही आपको स्वैप करना है. तो अब क्या करेंगे? ओके, सो नाउ लेट्स सी. तो करके देखते हैं. नाउ लेट्स सी, वी आर गोना राइट पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 numbers. ओके, पाइथन प्रोग्राम लेट्स से विथ एडिशन. ओके, पता है हमें स्वैपिंग के लिए करना है, तो आई जस्ट से विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, चलो चालू करते हैं फटाफट. तो x क्या है हमारे पास? लेट्स से 5. y क्या है हमारे पास? 7. ओके, अभी हमें क्या करना है? एडिशन सब्सट्रैक्शन यूज़ करना है. थोड़ा लॉजिक यूज़ करो स्टूडेंट्स. आई राइट द कोड, थोड़ा खुद समझने की कोशिश करो. वीडियो को थोड़ी देर पॉज करना बिफोर आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन, और खुद समझने की कोशिश करना. ठीक है, सो लेट्स से नाउ x इज इक्वल टू, मैंने बोला x इज इक्वल टू x प्लस वाई करते हैं. ठीक है, सोचो थोड़ा. उसके बाद हम करते हैं y इज इक्वल टू x माइनस वाई. फिर हम बोलते हैं x इज इक्वल टू x माइनस वाई. देखो थोड़ा सोचो, x को हमने x प्लस वाई कर दिया, मतलब x का वैल्यू हमने बहुत बड़ा कर दिया. फिर y को बोला वो जो बड़ा वैल्यू था ना उसमें से y को निकाल दो. ओके, तो सिर्फ बचा x, इतना याद रखो, सिर्फ बचा x. और फिर हमने बोला y इज इक्वल टू x करना है उसको. तो y स्वैप हो गया, y स्वैप हो गया. x तो हमारा था ही, जो पुराना वाला x था उसे नया वाला y माइनस कर दो, आपको नया x मिल जाएगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. बट पहले देखते हैं हमारा आंसर राइट भी है कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज माय न्यू वैल्यू ऑफ x नाउ. ठीक है, मेरा न्यू वैल्यू ऑफ x क्या है? देखो मेरा न्यू वैल्यू बराबर 7 आ गया. ओके, और देखते हैं मेरा न्यू वैल्यू ऑफ y क्या बोलता है. ओके, y भी 5 आएगा, तो आंसर तो करेक्ट है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप किया क्या हमने. देखो आपने क्या किया, लेट अस स्टार्ट. x इज इक्वल टू 5 था आपका, y इज इक्वल टू 7 था, करेक्ट. आपने बोला x इज इक्वल टू x प्लस वाई. ये किया आपने, देखो यहाँ पे किया है x इज इक्वल टू x प्लस वाई. ठीक है, अभी क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं अभी x का वैल्यू क्या है इधर ही. क्यों? सो विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. देखो x का वैल्यू 12 हो गया, इन बिटवीन है हम लोग. उसने क्या किया, x प्लस 5, तो दैट इज 7 प्लस 5 12 कर दिया. नेक्स्ट व्हाट यू आर सेइंग इज y इज इक्वल टू x माइनस वाई करेंगे. अब x किधर गया, y इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो दैट इज 12 माइनस जो y का वैल्यू था वो दे दो. ओके, तो देखते हैं अभी x क्या हो गया, y क्या हो गया. y इज इक्वल टू, ओके देखो उसने क्या किया, 12 माइनस जो y का वैल्यू था 7, उसको कैंसिल कर दिया. मतलब क्या बचा, सिर्फ x. जो x बचा था हमने क्या बोला, दैट इज इक्वल टू y. तो यहाँ पे ही आपका स्वैपिंग हो गया y के साथ. y का वैल्यू 5 आपको इधर ही मिल गया. अभी हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, x. ओके, x क्या है अभी. सो नाउ x इज इक्वल टू x माइनस वाई. x क्या था, 12. याद है आपको x क्या था, x था 12 माइनस y. अभी y का वैल्यू क्या हो गया, 5. तो 12 माइनस 5 ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, 7. वही आपका वैल्यू हुआ है इधर. सो आई से प्रिंट x इज इक्वल टू x. देखो आपका वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 7. सो बहुत सिंपल, बट थोड़ा लॉजिकल यूज करना है आपको, एडिशन सब्सट्रैक्शन. इफ दे से कि स्वैपिंग ऑफ नंबर्स यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही करना है, सो दिस इज द वे यू कैन डू.
दोज हु वांट टू ट्राई कि अगर हमें और कोई तरीका है क्या, हाँ, और बहुत सारे तरीके हैं. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन से भी करना है, सेम लॉजिक जो हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन में किया ना स्टूडेंट्स, सेम लॉजिक हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के लिए भी. ओके, सो लेट अस क्विकली सी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डिविजन में करना है तो आप कैसे करेंगे. तो आपने बोला x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7. ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, अब बोलेंगे आप x इज इक्वल टू x इंटू वाई, सॉरी, ओके, x इंटू वाई करके सेम जैसे आपने इधर एडिशन में किया था, x इंटू वाई कर दिया. y को बोला y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y करेंगे आप. ओके, डिवाइडेड बाय y करेंगे. ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू x, जो नया x था उसको डिवाइड बाय y करेंगे. देखते हैं अब क्या होता है. सो ऐसे प्रिंट, सॉरी वो एंटर हो गया. ओके, सो लेट्स से प्रिंट x इज इक्वल टू x. x को देते हैं. देखो आपका x का वैल्यू 7.0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है उसने उसको फ्लोट में कंसिडर किया. ओके, बट दैट इज 7 ओनली, राइट. और हमारा y क्या हुआ है, y क्या हुआ है, y इज इक्वल टू, y को प्रिंट करके देखते हैं. देखो y भी बराबर 5.0 हुआ है. अगर आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, फिर से हम वो कर सकते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे हमने किया था. देखो x इज इक्वल टू 5 कर दिया, y इज इक्वल टू 7 कर दिया. तो हमने फर्स्ट क्या किया है, x इज इक्वल टू, ले लेते हैं उसको यहाँ पे, x इज इक्वल टू x इंटू वाई. देखते हैं हमारा x का वैल्यू क्या हुआ है. ओके, सो उसने मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 5. ओके, तो उसको वैल्यू मिल गया 35. x का नया वैल्यू मिला 35. नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं ना, y इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट, y इज इक्वल टू वॉट एवर वॉज द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाई y. तो दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 7. इधर ही हमें पता चल गया. सो दैट इज इक्वल टू, देखते हैं अभी, y इज इक्वल टू, y में डाल देते हैं. देखो आपका आ गया इधर 5. सिमिलरली लास्ट आपने क्या किया, अभी x नया जो x था वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे. प्रिंट क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू x. ठीक है, आपका वैल्यू आ गया. सो वेरी सिंपल, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑल्सो यू कैन डू दैट. Okay, we can do that by using multiplication and division. One more last method, students, that very rarely asked, but yes, it is a common question if you reach to that level. Okay, तो let's see, अगर हम कुछ concept use करते हैं XOR, अगर हमने XOR यूज़ किया तो भी हम swapping कर सकते हैं. ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट. सो लेट्स से आई एम डूइंग पाइथन प्रोग्राम. ओके, to swap two numbers using, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, XOR. ठीक है, हम लेट्स से हमें XOR यूज़ कर रहे हैं. कैसे यूज़ करना है ऑल आई टेल यू. पहले एज यूजुअल हमारी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7. अज्यूम करते हैं हम स्टार्टिंग से वही है हमारा. XOR क्या करता है, XOR ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है, ये एक बुलियन वेरिएबल होता है विच कन्वर्ट्स x एंड y इनटू डिफरेंट वैल्यूज एंड देन इट स्टोर्स द वैल्यू दैट वे. ठीक है, तो इंटरमीडिएट आंसर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अलग आंसर आता है इसमें. ओके, बट फाइनल आंसर, क्योंकि एज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन, all this can be understood only by a low level languages. okay, तो intermediate answers आपको correct नहीं आएंगे, but still देखते हैं y. okay, and x क्या करेंगे हम, again x of y. ठीक है, ये किया हमने. अभी देखते हैं हम प्रिंट x is equal to
x, ओके. देखो हमारा x7 आ गया. प्रिंट y, सॉरी, प्रिंट y इज इक्वल टू, ओके, हमें y इज इक्वल टू 5 भी आ गया. क्लियर? एज आई सेड, इंटरमीडिएट आंसर्स अगर आप देखना चाहते हो, तो आप, दिस इज व्हाट आई गिव अस अ सेल्फ स्टडी टू यू. आप देख सकते हैं आंसर्स आपको थोड़ा अलग आएंगे, ओके, बिकॉज दोज आर बुलियन and they binary, they don't your high level Python programming language will not understand that. Okay, so this was all about a basic Python programming, students. I hope you liked the videos. I hope I was capable enough that I made your concepts clear. Very simple concepts. Okay, आपने सोचा होगा if else for ये सब क्यों नहीं यूज़ किया है. प्लीज़ रेफर टू आवर फर्स्ट वीडियो. हमने डे बाय डे सेशन बोला है कि हम क्या क्या लेंगे. आज के सेशन में हमें बेसिक प्रोग्रामिंग लेनी थी. फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई कैन से वी आर स्टार्टिंग विद आर कंट्रोल स्टेटमेंट. सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपका इफ, एल्स, फॉर, ये सब आएंगे. सो दैट टाइम वी विल डू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स जहाँ पे हम लोग ये सब यूज़ करेंगे. ओके, सो आई होप you like the video. So please like, and if there are any questions, any things you want us to do, you can please give it in a comment section. Thank you so much.